Hello everyone, I am Mudit Jain. As you can see on your screens, this is a video regarding UPSC answer writing Write Smart course. You must be wondering why I am here for Write Smart course when your favorite faculty Dr. Shivin Chaudhary takes this course. So let us find out why I am here. First, before telling you my role in Write Smart, let me tell you about how to score 425 plus marks in GS. At the cost of repetition and also at the cost of sounding pompous, let me tell you that I have scored 425 plus twice in UPSC. Once I scored 426 marks, those were fifth highest marks among selected candidates that year in GS, and once I happened to score 463 marks in GS. So trust me, whatever I am saying in this video, I know what I am talking about. ठीक है, so first things first, the most important thing about answer writing is not even answer writing itself, it is content. So what mistake people make is they jump to answer writing. Answer writing is like a staircase. This is a staircase, this is answer writing. You are standing here right now, you cannot jump to answer writing staircase. ठीक है, there are certain steps that you need to follow. Let me tell you those steps. So first is having unique content. Your answer will be as unique your content is. But then what is the idea of Write Smart? How can we help you even if your content is not unique, even if your notes are not consolidated, even if your revision is not that sound? These three are basics of answer writing: having concise notes, revising those notes, having structured answer in your mind, structure format in your mind. If you do not have even these ingredients, then too you can score 425 plus marks in GS with help of this course. So how we will help you is, we'll help you in thinking, we'll help you in brainstorming, not only the structure of answer, also the points of answer. How we will do it, you will be wondering how we can do that if you do not have content itself. It is because of the approaches. So Dr. Shivin has created n number of approaches for GS1, 2 and 3. This tells you my role here. My role in Write Smart is restricted and limited to GS4 and essay writing. So let me tell you a few of approaches that Dr. Shivin has created. First is syllabus approach. So if there is XYZ question, how will we will be using syllabus questions, syllabus topics in answering that question. एक पॉइंट हम लेंगे GS1 से, हिस्ट्री से, एक ज्योग्राफी से, एक सोसाइटी से, GS2 में पॉलिटी IR, GS3 इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी, disaster, environment, security, GS4 ethical perspective if that question allows. So ये हो गई आपकी GS based approach. एक approach है temporal approach. Temporal approach can be easily used in answering any question of history. We'll move chronologically, event wise. Then there is approach called stakeholder approach. So if UPSC asks you about what is the effect of XYZ thing on XYZ, then XYZ can be replaced with stakeholders. के इस चीज का क्या असर होगा इन इन लोगों पे, तो वो स्टेक होल्डर्स हमने डिफाइन कर दिए कि आप इस अप्रोच पे देखो, यहाँ क्या असर हो रहा है, इस पे क्या हो रहा है, इस पे क्या हो रहा है. Similarly, n number of approaches have been created which will help you in not only brainstorming the points but also writing structured answer. होता क्या है, we have a number of points in mind, but then पहले कोई पॉइंट आ जाता है, फिर कोई आ जाता है, जब पेज खत्म होने वाला होता है तब याद आता है यार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट तो रह ही गया. सो वो प्रॉब्लम ना हो, वो आपको अप्रोचेस में हेल्प करेगी. I'll be discussing few of the approaches that I have created for essay and ethics answer writing in the next coming slides. ये the model is based on, the module is based on solving PYQs. Why we are picking PYQs and not random sample questions is because so that you are able to understand the themes that UPSC is asking. There is n number of repetitions in the themes that UPSC asks every year. फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट का एक क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड ही बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं. तो अगर एक बार हमारी अप्रोच से आपको ये पता चल गया कि क्लाइमेट को मैप करना है
ऐसे ऐसे, तो आप कोई भी क्वेश्चन आए आप क्लाइमेट का क्वेश्चन हैंडल कर लोगे। रीजनलिज्म पे क्वेश्चन आए हैं कई बार, तो उसका अगर एक बार हमने आपको बता दिया कि कैसे लिखना है, कौन सी अप्रोच यूज करनी है, यू कैन राइट एनी क्वेश्चन, एनी डैम क्वेश्चन ऑन रीजनलिज्म यूजिंग दैट अप्रोच। ठीक है, तो पीवाईक्यू से आपको थीम्स पता चलेंगे, प्लस पर्सनल नॉलेज के बेस पे बता रहा हूं आपको, पीवाईक्यूज एग्जैक्ट रिपीट भी हुए हैं वर्बटिम एथिक्स के पेपर में। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, सेम क्वेश्चन केम इन 2022 एज वेल। सिमिलरली केस स्टडी में भी रिपीटिशन हुआ है, सेम क्वेश्चन, सेम एंटायर केस स्टडी वर्बटिम हैज बीन रिपीटेड इन द पास्ट। So that is the importance of PYQ, that you not only get to understand the psyche of the examiner, you will understand the themes, and when those themes will be repeated, you will be able to apply the same approaches that we will be discussing in the sessions. So this will also help you in saving time in writing those answers during your mains. Mains में 10 marker question you get 7 minutes, 12 marker 9 minutes, and a 15 marker 11 minutes. Now the UPSC is asking you 4-liner, 5-liner questions in which you have to take at least 2 minutes to read and comprehend the demand of the question. Now you have effectively say 9 or 11 minutes to write the entire answer, 9 minutes for a 15 marker. That is very tough job. So if you practice those themes beforehand and the theme is repeated, you will be able to complete that answer not in 9 minutes but 7 minutes itself. So that is the whole idea of Write Smart. Just to tell you, Write Smart course is also part of our MMP Plus program, जिसमें मेरा एथिक्स और एसए की लाइव क्लासेस भी हैं, अपार्ट फ्रॉम अदर मॉड्यूल्स। GS3 जो डॉक्टर शिविन लेंगे, GS2 जो आतिश माथुर सर ले रहे हैं, तो उसमें सारे मॉड्यूल्स इंक्लूडेड है एमएमपी प्लस में, इंक्लूडिंग द राइट स्मार्ट मॉड्यूल। Now my role, I have already told you in brief that I'll restrict my role for essay and GS4. In GS4 there will be 6 sessions. How I have designed is that section A and section B carries equal weightage, so it is very easy for me to divide 6 sessions into 3 each. So in 3 sessions of section A we'll be discussing 3 types of questions. What happens is that people prepare entire section A in one uniform way only. One size fit all नहीं चलता है section A के answer writing में. There are 3 types of questions that are asked in section A. First is theoretical, that is to be handled in a different way. Second is quote based question, that we will handle in different ways. And third is applied ethics question, which we will handle in different ways. So there will be 3 sessions each for 3 types of section A questions, and then there will be 3 sessions for section B, that is case studies. Case studies में भी there is a private sphere case study, there is a public sphere case study, there are act based case study, and there is a topic based or applied ethics case study. So we'll discuss each type in one session each. And similarly there are 3 sessions for essay in which I'll be discussing 3 different approaches. I won't discuss pestle or staple approach, वो आप सबको पता है, आई एज्यूम इट, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इकोलॉजिकल, वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बहुत क्लीशे अप्रोच है। इफ यू आर माय स्टूडेंट्स, इफ यू आर लर्निंग एसे राइटिंग फ्रॉम मी, तो आप डिफरेंट अप्रोचेस में एसे लिखोगे। जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड, वंस आई स्कोर्ड 135 मार्क्स इन एसे एंड सेकंड टाइम आई स्कोर्ड 150 मार्क्स, एंड मैंने अपनी यही यूनिक अप्रोचेस वहां पे यूज करी थी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद ये क्लियर करना बहुत जरूरी है, आई नीड टू सेट द एक्सपेक्टेशंस राइट। थ्योरी ऑफ एथिक्स एंड एसे इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस कोर्स बिकॉज दैट इज अ सेपरेट कोर्स. What we will deal here is only and only approaches for answer writing, for ethics answer writing as well as essay answer writing. In my essay course you will learn 10 different approaches. Here only 3 sessions are there, hence we will learn max 3 to 4 approaches. Now let me tell you some of my approaches. So मेरी अप्रोच क्या है, जैसे डॉक्टर शिविन ने बताया, एक सिलेबस बेस्ड अप्रोच, सेम अप्रोच कैन बी यूज्ड इन एथिक्स आंसर्स आल्सो. फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, तो मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेता हूं. ह्यूमन बीइंग शुड ऑलवेज बी ट्रीटेड एज एंड्स इन देमसेल्फ एंड नेवर एज मीन्स. एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट गिविंग इट्स implications in the modern techno-economic society. If you know the syllabus, you will very well know that this statement is nothing but
categorical imperative 2 as postulated by Immanuel Kant. तो ये क्वेश्चन है सिलेबस बेस्ड अप्रोच से आंसर करने वाला, जिसमें as soon as I see this question it should click in my mind that this is categorical imperative, and in the introduction itself I'll write about categorical imperative 2. I'll write about Kant. If need be, I'll write about his other categorical imperatives also. CI1 is universal value, CI2 is on your screen, CI3 is regarding kingdom of ends and autonomy principle. तो मैं वो तीनों मेंशन कर दूंगा in the introduction, so that I am telling the examiner that I know from where this question has been asked, and this will set a very positive bias in favor of you. Plus, what we do in syllabus approaches, there are certain keywords related to this approach, like inherent worth, inherent dignity, inherent human rights by virtue of being human. तो मेरे आंसर में वो 3 कीवर्ड्स यहां पे जरूर आने चाहिए इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये सीधा सिलेबस का टॉपिक है. अगर ये 3 कीवर्ड्स मेरे आंसर में मिसिंग है, ट्रस्ट मी, इफ 18,000 पीपल आर राइटिंग मेंस, at least 5,000 will write these keywords which I am telling you. So if you are not writing those keywords, you will be at short end. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें दूसरी अप्रोच है थ्योरेटिकल अप्रोच. ठीक है, ये रेफ्यूजीज पे क्वेश्चन आया था रिसेंट ईयर्स में, शायद 22 या 23 में क्वेश्चन आया है. दिस इज अ अप्लाइड एथिक्स क्वेश्चन. The problem in dealing with applied ethics question is that you will end up treating it as a GS2 answer rather than a GS4 answer. If this question has been asked in GS4, onus is on me to provide ethics in my answers. Now, I am expecting at least 5 to 6 questions of similar nature in CSE 2024 mains, because last year the paper was easy and theoretical. That is the sole reason I am expecting that this year UPSC will give at least 5 or 6 questions on applied ethics, and hence I have developed 6 different approaches for applied ethics questions, so that your answer is not only different from your competitors, even your previous answer is different from your next answer. So I'll provide you 5 to 6 different approaches of applied ethics. One of those approach is answering the entire question with help of theories. ठीक है, टेक्निकल नहीं होगा, बिकॉज वी विल यूज थ्योरीज ओनली इन द पासिंग रेफरेंस. जैसे अगर ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है रेफ्यूजी शुड नॉट बी टर्न बैक टू द कंट्री वेयर दे वुड फेस परसिक्यूशन और ह्यूमन राइट्स वायलेशन. एग्जामिन द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एथिकल डायमेंशन बीइंग वायलेटेड बाय द नेशन क्लेमिंग टू बी डेमोक्रेटिक विद एन ओपन सोसाइटी. ये कह रहे हैं एक कंट्री है जो डेमोक्रेटिक क्लेम करती है खुद को, एंड वो रेफ्यूजीज को लौटा रही है, तो उसमें एथिकल इश्यूज क्या होंगे. तो मैं कह रहा हूं, अगर कोई कंट्री खुद को डेमोक्रेटिक क्लेम कर रही है, देन इट शुड बी वरिंग अबाउट मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन लाइन विद यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल. सिर्फ इतना लिखेंगे, इन लाइन विद यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल. बात वही लिखनी है जो हमने लिखी है. वील जस्ट राइट दीज 3 कीवर्ड्स इन फ्रंट ऑफ दैट, सो दैट नाउ एग्जामिनर नोज आई नो यूटिलिटेरियनिज्म. I am not going to explain what is utilitarianism या उसका थिंकर कौन है, बेंथम एंड मिल ने बोली है, मुझे पता है. मैं आंसर में नहीं लिखूंगा, अदरवाइज माय आंसर विल बिकम टेक्निकल. तो मैं सिर्फ इतना लिखूंगा. सेकंड देखो, इफ आई एम अ कंट्री विद डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड ओपन सोसाइटी एंड आई एम वरीड अबाउट ह्यूमन राइट्स ऑफ द परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज और पीपल, then I will ensure that social ethics is followed और communitarianism is followed. तो एक बस वो कीवर्ड लिख दिया है, और अगर मैं वो फॉलो नहीं कर रहा हूं, देन इट इज गोइंग अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सोशल एथिक्स या कम्युनिटेरियनिज्म. सिमिलरली एन नंबर ऑफ कीवर्ड जो आपकी स्क्रीन पे मेंशन्ड है, वो आप इस आंसर में यूज कर सकते हो. वो मैं आपको राइट स्मार्ट अप्रोच में सिखाऊंगा कि बाकी थ्योरीज कैसे यूज करनी है. एक मैंने अप्रोच बनाई है अपनी PYQ बेस्ड अप्रोच. 2016 में क्वेश्चन आया था जॉन रॉल्स पे. देयर वाज अनदर क्वेश्चन ऑन वेबर ब्यूरोक्रेट. देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन 7 सिंस बाय महात्मा गांधी. तो इन सब कीवर्ड्स को वेस्ट क्यों कर रहे हो? यूज देम इन योर आंसर्स. फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, current internet expansionism has instilled a different set of cultural values which are often in conflict with traditional values. तो PYQ से मैंने कुछ पॉइंट्स उठाए हैं, मैंने सारे PYQ एनालाइज कर लिया. आई हैव जॉटेड डाउन द लिस्ट ऑफ यूजेबल वर्ड्स व्हिच यू कैन यूज इन मल्टीपल आंसर्स. तो एक बार ये क्वेश्चन आया था, नैरो परसेप्शन ऑफ गुड लाइफ इज बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ थिंग्स दैट वी अटैच टू देम. तो मैं लिख दूंगा कि नैरो परसेप्शन हो रहा है इंटरनेट एक्सपेंशनिज्म की वजह से सोशल मीडिया पे, वेयर पीपल आर रिस्ट्रिक्टिंग देमसेल्फ टू मटेरियलिस्टिक गुड्स. कि मेरे इंस्टा पे लाइक कितने हैं, मेरे यूट्यूब पे लाइक कितने हैं. पीपल आर हैविंग नैरो परसेप्शन ऑफ लाइफ
and this is leading to violation of traditional cultural values in line with new values. ठीक है, एक क्वेश्चन आया था, हेट्रेड इज डिस्ट्रक्टिव ऑफ अ पर्सन्स विजडम, तो मैं बोलूंगा सोशल मीडिया पे हेट स्पीच बहुत रैम्पेंट है, दिस इज बिकॉज ऑफ इंटरनेट एक्सपेंशनिज्म, और इंडिया की ट्रेडिशनल वैल्यू रही है यूनिटी एंड ब्रदरहुड, जैसे कि बुद्धा या महावीर ने प्रिस्क्राइब करा है, और अब इंटरनेट उसको वायलेट कर रही है। तो आपने लाइव देखा कि पीवाईक्यूज को यूज करके भी आप पूरा आंसर लिख सकते हो, सिर्फ अप्रोचेस नहीं, आई विल आल्सो ऑफ कोर्स इट इज माय ड्यूटी टू डिस्कस द broad answer writing structure as well. So if I zoom in to the screen, you will be able to see this question better. Only approaches cannot get you marks, it is a given. If I say just for the sake of promotion of course that only approaches will get you marks, then I am doing disservice to you. ऐसा नहीं है, you need to follow some structure, especially in ethics question, जो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले क्वेश्चन में कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, जैसे वैल्यू एंड एथिक्स यहाँ कीवर्ड है, देन डिफाइन द कीवर्ड इन योर इंट्रोडक्शन, आफ्टर दैट एंश्योर दैट यू आर गिविंग सम यूनिक डेफिनेशन, वो ओनस मेरे पे है, आई विल प्रोवाइड दोज डेफिनेशंस टू यू, ठीक है। उसके बाद आपके पास रेडीमेड एग्जांपल्स होने चाहिए, क्योंकि एथिक्स के हर क्वेश्चन में एटलीस्ट 2 to 3 एग्जांपल्स वी शुड राइट टू सब्सटैंशिएट आवर व्यूज आवर पॉइंट्स। फिर सेपरेट हेडिंग्स बनाएंगे हम, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, आंसर्स हमारे नंबर्ड पॉइंट्स में होंगे, पैराग्राफ बुलेट्स में हम नहीं लिखेंगे, नंबर पॉइंट्स में होंगे, हर आंसर में कुछ ना कुछ कीवर्ड्स हम यूज करते जाएंगे। ये मैंने आपको कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस दिखानी है, दैट इज व्हाई आई हैव यूज्ड सो मेनी कीवर्ड्स हियर। इतने कीवर्ड्स हमें यूज नहीं करने, वन आंसर में इफ यू आर एबल टू यूज 5 कीवर्ड्स दैट इज मोर देन इनफ। उसके बाद डायग्राम हम सीखेंगे कि डायग्राम्स कैसे बनाने हैं, ये फिर 2 एग्जांपल्स आ गए, एंड लास्टली देयर विल बी कंक्लूजन। सो दिस इज ब्रॉड आंसर स्ट्रक्चर ऑफ अ सेक्शन ए क्वेश्चन जो हम फॉलो करेंगे एथिक्स में। नाउ कमिंग टू सेक्शन बी, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट there are at least 4 different types of questions that have been asked by UPSC: private, public, applied and act based. The challenge is that students blindly write the same set of keywords, same set of intro, conclusion, same principles, same thinkers across their case studies. So my approach will be to teach you to first identify कि case study का type क्या है, then I'll give you a ready-made list कि public की case study आए ये 10 कीवर्ड लिखना, प्राइवेट की आए ये 10 कीवर्ड लिखना है, एक्ट बेस्ड केस स्टडी आए तो एक्ट को कैसे यूज करना है, अप्लाइड एथिक्स की केस स्टडी आए तो उसको कैसे हैंडल करना है, सो दैट देयर आर रेडीमेड टेम्पलेट्स विद यू, एंड एज सून एज यू गो टू दैट एग्जाम हॉल यू सी केस स्टडी, यू आइडेंटिफाई अच्छा ये पब्लिक टाइप है, आपके दिमाग में आ जाएगा मुझे ये 10 कीवर्ड्स लिखने हैं, यू वुड नॉट रिक्वायर एनी सॉर्ट ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग। देखो केस डिफरेंट होगा, स्टेक होल्डर्स डिफरेंट होंगे, डिलेमास डिफरेंट होंगे आंसर में, लेकिन कीवर्ड्स आना चाहिए। ये सब लोग बोलते हैं कि केस स्टडी में एटलीस्ट 5 to 6 कीवर्ड्स 4 पेजेस का जो होता है एक केस उसमें आने चाहिए। चैलेंज होता है उस प्रेशर एनवायरनमेंट में जब टाइम बहुत कम होता है तो क्या कीवर्ड लिखूं, जनरली होता क्या है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ, गुड गवर्नेंस, यही कीवर्ड आते रहते हैं आंसर में। तो मैं आपको रेडीमेड लिस्ट दूंगा जिससे कि आपकी जो आंसर राइटिंग है केस स्टडी की वो काफी आसान हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पब्लिक स्फेयर की केस स्टडी है तो उसमें ये डिलेमा, ये कीवर्ड्स होते ही हैं लगभग हर केस स्टडी में। आप ये सेशन के ये वीडियो देखने के बाद आप कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खोल के देखना जिसमें कोई केस स्टडी हो, यू आर एसडीएम, यू आर एसपी ऑफ XYZ डिस्ट्रिक्ट या यू आर म्युनिसिपल कमिश्नर एटसेट्रा, आप उसमें कीवर्ड्स अप्लाई करके देखना, यू विल सी दैट, यू विल रियलाइज एंड यू विल सब्सक्राइब विद मी कि मैं सही बोल रहा हूँ। तो पब्लिक इंटरेस्ट, ड्यूटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, democratic attitude, this is again a previous year question that was asked by UPSC, democratic versus bureaucratic attitude, righteous conduct, knower doer split as it was postulated by Dayanand Saraswati ji, so इसको यूज करेंगे। Socratic ideal man, Socrates क्या बोलते हैं, ideal man क्या है, who takes just decisions without worrying about personal consequences। तो हर केस स्टडी में पब्लिक स्फेयर हो, प्राइवेट स्फेयर हो, ऐसा आता ही है कि यू आर रिसेंटली मैरिड और योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, यू हैव होम लोन, बैंक लोन, इफ यू डू नॉट डू द रॉन्ग टास्क एज प्रिस्क्राइब्ड बाय योर सीनियर देन योर जॉब इज अंडर थ्रेट एंड ऑल। सो सोक्रेटिक आइडियल मैन क्या बोलेगा कि आई विल टेक द ऑनेस्ट डिसीजन विदाउट वरिंग अबाउट माई पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेज।
तो ऐसे रेडीमेड कीवर्ड्स और थ्योरीज प्रिंसिपल्स मैं आपको दूंगा जो आप डायरेक्टली आंसर्स में यूज कर पाओगे। ये सेक्शन बी का फॉर्मेट है जिसमें वी राइट द जिस्ट ऑफ द केस, देन वी राइट अबाउट द स्टेक होल्डर्स। यहाँ पे जिस्ट आ गया है, फिर स्टेक होल्डर्स लिख दिया हमने। अगेन वी विल मेक सेपरेट हेडिंग्स, आंसर्स विल बी इन पॉइंट्स। See how I have used a number of keywords. This is a private sphere case study in which we use different set of keywords. ठीक है, और उसके बाद डायग्राम बनाएंगे एंड लास्टली देयर विल बी कंक्लूजन। तो दिस इज हाउ यू शुड आइडियली आंसर, राइट आंसर्स इन एथिक्स के। एथिक्स आए आंसर में, अप्लाइड एथिक्स के क्वेश्चन में भी एथिक्स आए, उसकी अप्रोचेस मैं आपको बताऊंगा। देन सेकेंडली आई विल बी ऑल्सो डीलिंग विद essay आंसर राइटिंग एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो। Issue with this staple is that if 14,000 18,000 people are writing mains, then at least 90% of them will at least write one essay with this staple approach. There are people who write both their essays with this approach only and they end up getting less than 100 marks, and then they question themselves that यार essay तो सही लिखा था, marks क्यों नहीं आए। So अगर आप दोनों essay एक ही approach से लिखोगे या आप एक ही approach जो follow होती रही है, सब लोग follow कर रहे हैं, तो कुछ यूनिक नहीं मिलेगा एग्जामिनर को। इफ आई एम एन एग्जामिनर, आई हैव चेक 49 कॉपीज सो फार, योर्स इज द 50th कॉपी, हाउ विल आई गिव यू मोर मार्क्स इफ योर आंसर इज नॉट यूनिक। तो पहला तो ये रीजन हो गया कि हम स्टेपल यूज नहीं करेंगे। आई विल टीच यू 3 to 4 अप्रोचेस। लाइक ये आंसर राइटिंग में भी GS 1 2 3 में एक अप्रोच है SDG अप्रोच, कि मेरे 17 SDGs है, पॉवर्टी, हंगर, एजुकेशन, इक्वालिटी, तो उनको यूज करके पूरा एसे कैसे लिखना है वो सिखाऊंगा मैं आपको। सेक्टोरल अप्रोच के बिजनेस सेक्टर, स्पेस सेक्टर, साइंस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, ह्यूमन सेक्टर, अलग अलग सेक्टर्स को यूज करके एसे कैसे लिखना है। ठीक है। क्रोनोलॉजिकल, स्टार्ट विद एन इंडिविजुअल, देन गो टू द फैमिली, देन द ऑर्गेनाइजेशन, देन सोसाइटी, देन नेशन, देन वर्ल्ड। तो ये 6 डायमेंशन हो गई। अब उन 6 डायमेंशन को यूज करके आप 6 पेज की ऐसे बॉडी लिख सकते हो। वो अगर आपने सीखना है तो वो सिखाऊंगा मैं। फिर कैटेगराइजेशन अप्रोच, जैसे क्वेश्चन आता है कि अ सोसाइटी दैट हैज मोर जस्टिस नीड्स लेस चैरिटी, तो ऐसे क्वेश्चन को देखते ही अप्रोच लग जाएगी कि यार जस्टिस को कैटेगराइज कर देते हैं, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक, प्रोसीजरल, सब्सटैटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, लीगल, अलग अलग जस्टिस में डिवाइड कर दो एंड देन राइट 1 पैराग्राफ और 2 पैराग्राफ ऑन ईच फॉर्म ऑफ जस्टिस। तो ये कैटेगराइजेशन अप्रोच है। रेदर देन ब्लाइंडली फॉलोइंग दैट बेसिक अप्रोच, विल बी डिस्कसिंग सच यूनिक अप्रोचेस। माय आइडिया विल बी टू हेल्प यू ब्रेनस्टॉर्म। ऐसा नहीं होगा मैं आपको एक टॉपिक दूंगा और मैं 3 घंटे बैठ जाऊंगा कि आप लिखो, उसमें आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला। What I'll do is I'll first give you a topic, then I'll explain my approach, I'll explain the structure of that approach, structure of that essay using my approach. For example, be the change you want to see, SDG approach मैंने आपको दे दी और मैं SDG से फिर आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा उसका लाइव कि ये पॉइंट्स इसके हो सकते हैं। we will discuss the structure, we'll brainstorm so that आपको आदत पड़ जाए उस स्ट्रक्चर की। then I'll give you another topic और SDG अप्रोच यूज करके आप उसका स्ट्रक्चर लाइव बनाओगे 20 मिनट्स में, 15-20 मिनट्स में। देन वी विल अगेन डिस्कस द स्ट्रक्चर, विल ब्रेनस्टॉर्म द पॉइंट्स, देन आई विल गिव यू अनदर टॉपिक और फिर आप उसका दोबारा स्ट्रक्चर बनाओगे। सो एक अप्रोच को हम 3 टॉपिक से डिस्कस करेंगे, जिसमें पहले मैं स्ट्रक्चर सिखाऊंगा, डिस्कस करेंगे, फिर 2 स्ट्रक्चर्स आप बनाओगे सो दैट यू आर एबल टू ब्रेनस्टॉर्म। चैलेंज इज कि जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे, I won't be there with you to brainstorm for you. वहां पे रैंडम टॉपिक, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक ही आना है, एज आई विल शो यू इन द नेक्स्ट स्लाइड के हो क्या रहा है यूपीएससी में। वो रैंडम टॉपिक को आपको खुद ब्रेक करना है, खुद अप्रोच लगानी है। यू हैव टू बी योर ओन मैन देयर। तो मैं इसलिए ब्रेनस्टॉर्म आपको यही कराऊंगा सो दैट इसकी आदत पड़ जाए आपको। जब आप एग्जाम हॉल में जाओ, यू आर नॉट कॉट ऑफ गार्ड। ठीक है, वो आदत पड़ेगी। एनेक्डोट्स की लिस्ट है मेरे पास, कोट्स की, यूजेबल कोट्स, यूजेबल कंक्लूजन। लोग क्या करते हैं, 100-200 कोट पढ़ ली, 50 कोट पढ़ ली, यूज एक भी नहीं हो रही क्योंकि याद ही नहीं है सब। हम सिर्फ 20 एनेक्डोट्स देखेंगे, 20 एनेक्डोट्स, 20 कंक्लूजन थीम्स और 20 कोट एनेक्डोट्स, कोट्स एंड कंक्लूजन्स, और उनको यूज करेंगे। ठीक है, प्लस मैंने एनेक्डोट और कोट्स को लिंक करा है। लाइक अगर मैं कोई
फेमस पर्सनैलिटी का एनेक्डोट दे रहा हूं आपको, MS धोनी का, सो उनकी बोली हुई कोई कोट जो है वो बताऊंगा मैं आपको, सो दैट इफ यू आर राइटिंग एनेक्डोट इन द इंट्रोडक्शन देन यू आर राइटिंग कोट इन द कंक्लूजन, तो मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है ऐसे का एनेक्डोट वो मेरे कंक्लूजन लास्ट पॉइंट से लिंक हो जाएगा। ठीक है, एनेक्डोट में चैलेंज यही होता है, पीपल राइट द एनेक्डोट एंड दे फॉरगेट अबाउट इट, पूरे ऐसे में कहीं आता ही नहीं है, वो नहीं करना है हमें। इफ यू आर राइटिंग एनेक्डोट तो पूरे ऐसे में उसे कहीं ना कहीं लाओ, मेक यूज ऑफ इट। ट्रिक्स बताऊंगा मैं आपको, दैट इफ इट अपीयर्स टू यू कि आप ऐसे के फ्लो से डाइग्रेस हो रहे हो, टॉपिक की डिमांड यू आर नॉट एबल टू जस्टिफाई, लिखते लिखते होता है कई बार दैट वी राइट 3 पेजेस, 3 क्वालिटी पेजेस एंड देन वी रियलाइज दैट कंटेंट नहीं है एंड वी एंड अप राइटिंग अ सब स्टैंडर्ड आंसर, सब स्टैंडर्ड ऐसे जो फ्लो मेंटेन नहीं हो रहा है। तो वो फ्लो पे कैसे आना है वो सिखाऊंगा, प्लस क्वेश्चन पेपर्स को प्रीवियस ईयर या करंट पेपर को कैसे यूज करना है वो ट्रिक बताऊंगा। So this is the graph that I told you in the previous 2-3 minutes के हो क्या रहा है यूपीएससी में। पहले फिलोसफिकल टॉपिक्स सिर्फ इतने आते थे, 1-2 या 2 टॉपिक आ गया, देयर वाज स्कोप फॉर यू टू राइट अ जीएस बेस्ड एसे, दैट स्कोप हैज नाउ एंडेड, क्योंकि इन 2021 8 टॉपिक्स वर फिलोसफिकल, देन इन 22 7 टॉपिक्स एंड देन इन अगेन इन लास्ट ईयर 8 out of 8 topics were philosophical. So you can expect at least 6, 7, 8 topics to be philosophical in 24 mains as well. And that is the challenge कि philosophical essay में approaches लोग नहीं लगा पा रहे हैं और marks इसलिए नहीं आ रहे हैं। ये एक सैंपल स्ट्रक्चर है जो हमने यूज किया। आई हैव यूज क्रोनोलॉजिकल एज वेल एज SDG बेस्ड अप्रोच। एस्से का टॉपिक है बी द चेंज दैट यू वांट टू सी, सो मैंने उसमें पहले क्रोनोलॉजी लगाया है। I have started with an individual, that how an individual can act as a change, and inside that I have written about SDG कि कौन सा SDG का कंपोनेंट है in which individual can act as a change agent। जैसे क्वालिटी एजुकेशन अगर मैं चाहता हूं कि मेरी कंट्री में हो तो हाउ कैन आई एक्ट एज अ चेंज एजेंट विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी एजुकेशन। फिर सोसाइटी आ गई इंडिविजुअल के बाद, और सोसाइटी में मैंने बोल दिया अगर इफ माई सोसाइटी विशेस टू बी हेल्दी सोसाइटी तो सोसाइटल लेवल पे हाउ कैन दे एक्ट एज अ चेंज एजेंट। फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल। ये यूनिक अप्रोच है क्योंकि वी हैव यूज्ड 2 डिफरेंट अप्रोचेस इन वन एसे, और आपको ये सुन के ही बेटर लग रहा होगा पेस्टल अप्रोच से। ठीक है, सो दिस इज ऑल दैट आई वांटेड टू डिस्कस इन दिस शॉर्ट वीडियो, that how I will be taking the Write Smart sessions of ethics and essay। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप स्क्रीन के दिए गए नंबर और ईमेल आईडी वगैरह पे मैसेज कर सकते हैं, या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।